एक मिनट। झाली ना? एक बदल अगर Good afternoon, all. Good afternoon, Good afternoon, sir. Afternoon, sir. So in the last part, we just discussed about that dot product, right? How to find out the product of scalar product of two vectors. Now we'll discuss the part of that which is known as nothing but a projection of a vector along another vector. So down the heading. Projection of vector along another vector. So projection of vector along another vector means suppose if you are having a vector, let's say a vector, and another vector represented by, take it as b vector. Now, if Rm is to find out the component of b vector along the direction of a vector, so we know how to resolve this b vector into its components. So if we like to find out the component of b along the direction of a, so we can write this will be equal to nothing but b cos theta, right? And perpendicular to that, we can write it as nothing but b sin theta. So this b cos theta का जो magnitude है, that is known as the component or the part of b vector along the direction of a vector. The same time, if you are using the word projection means हमको पूरा vector चाहिए, मतलब magnitude भी चाहिए, direction भी चाहिए. So you can write this b cos theta vector is known as nothing but a projection of b on a. So we can write projection of b vector on a vector is equal to nothing but b cos theta vector चाहिए. तो हमको चाहिए this b cos theta vector, उसका magnitude भी चाहिए, direction भी चाहिए. Now discuss how to represent this b cos theta vector. Now we can write it like this. This b cos theta vector is having a magnitude of b cos theta, and the direction of b cos theta vector is along the direction of a vector. अभी देखो इसका magnitude तो b cos theta है, but उसका direction a vector का direction में है. Okay, so we can represent it something like this. This b cos theta vector is having a magnitude of b cos theta, and its direction is along the direction of a vector. So a vector का जो only direction चाहिए, तो we can represent it by a cap. समझ में क्या लिखा है? b cos theta is a magnitude and direction is along the direction of a vector. So we can just multiply it with a unit vector along the direction of a vector, which is represented by nothing but a cap. Now discuss how to find out the value of बोलो बेटा. Sir, b cos theta is magnitude, then mod sign will come, no? b sin theta B cos theta. का हाँ, b cos theta is the magnitude of that. b cos theta का जो magnitude है उसको b cos theta लिखा है. तो सर mod का साइन नहीं आएगा? वेक्टर में लिखेगा तो मोड का साइन लिखेगा ना, इधर वेक्टर नहीं डाला ना उसमें. ओके, मतलब इधर यू शुड राइट, अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करना है तो अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को पहले आप
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऐसा लिखो या ए लिखो, समझा? Got it, sir. So over here you can write as just b cos theta into a cap. Now we can write what is this b cos theta. B cos theta कैसे find out करना? Can you Now scroll from up? this equation a vector dot b vector is equal to a dot b. हमको पता है a dot b के लिए इक्वेशन क्या था? a b cos theta था. So we can write this b cos theta is equal to nothing but a vector dot b vector divided by a, right? So instead of this b cos theta, we can write it is equal to a vector dot b vector divided by a is a value of b cos theta into a cap into unit vector along the direction of a vector that is represented by a cap. और इसको हमने ऐसा भी लिख सकता है, this is a vector dot b vector into ये जो unit vector है which can be written as nothing but a unit vector is a vector divided by its magnitude. तो हमने a cap को a vector divided by a भी लिख सकता है. So you can write this is a vector dot b vector divided by a into a. We can take it as it is a square into a vector. So that will give the component of a vector along the direction of b vector. Got it? So am I? Any doubt? Sir, can you explain Good. again? Yeah. RM is to find out the projection of one vector along the direction of another vector. Assume that suppose if you are having a vector, let's say a vector, and another vector over here, take it as b vector. An angle between a vector and b vector is theta. And RM is to find out projection or component of a vector along the direction of b vector. तो ये जो a वेक्टर है उसका कंपोनेंट b वेक्टर का डायरेक्शन में है which is a cos theta. ये समझ में आया? Yes, sir. अभी हमको Yes, क्या sir. चाहिए? a cos theta वेक्टर चाहिए. तो we can write how to represent this a cos theta vector. A cos theta vector is having a magnitude of a cos theta and direction is along the direction of, देखो ये b vector का direction है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकता है, this is having a magnitude of a cos theta and direction is along the direction of b vector, so that is represented by b cap, a cos theta into b cap. ये समझ में आया? A vector Yes. is Sir, can you scroll its up? magnet. दिख रहा है क्या अभी? इसमें हम मॉड नहीं लेंगे, क्या बेटा? इसमें हम मॉड नहीं लेंगे. किसका मॉडल लेना है? नो नो, आई एम जस्ट आस्किंग लाइक प्रीवियसली आपने उधर मॉड लिया था ना इस वही किसका मॉडल लेना है वही पूछा हूँ, किसका ए- मैग्नीट्यूड लेना है? वो बी वेक्टर का. बी वेक्टर का मतलब समझा नहीं. ये ए वेक्टर है, ये समझा? दिस इज ए वेक्टर. यस यस यस. ए वेक्टर का ए वाला कंपोनेंट ए cos थीटा होता है, ये समझ में आया? वाई इट इज ए cos थीटा. इतना तक समझ. हाँ, ये ए cos थीटा का जो वेक्टर है, ये cos थीटा वेक्टर हमको चाहिए. ये ए cos थीटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए cos थीटा, ये समझा? हाँ सर समझा. नाउ उसका जो डायरेक्शन है वो बी का डायरेक्शन में है, ये समझ में आया? करेक्ट. हाँ हाँ. Suppose if you are having a vector, let's say f vector, उसका मैग्नीट्यूड होता है f और डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं by using f cap. A vector is a product of its magnitude and direction. ऐसा हम लोग लिख Direction. सकता है. यस. तो इधर भी हम लोग सेम लिख रहा है, ये cos थीटा का मैग्नीट्यूड a cos थीटा है और उसका डायरेक्शन b वेक्टर का डायरेक्शन में है.
सो Okay. बी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, उसका बी कैप से मल्टीप्लाई किया. Yes, sir. तो बी कैप मतलब क्या है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी. B. तो डायरेक्शन रहेगा बी के तरफ, मैग्नीट्यूड रहेगा a cos थीटा. तो a cos थीटा का पूरा वेक्टर मिलेगा, मैग्नीट्यूड भी Okay. मिलेगा, डायरेक्शन भी मिलेगा. समझा? हाँ सर समझा. Thank you. So like if you are having a vector of magnitude 10 along x axis, तो हमको अगर वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन करना है, उसको हम लोग लिख सकता है 10 i कैप. 10 हो गया मैग्नीट्यूड, i कैप हो गया डायरेक्शन. तो पता चलेगा 10 along x axis. सेम थिंग ओवर हियर. ओके, तो उसके लिखा है a cos थीटा into b कैप. ये समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. नाउ a cos थीटा वेक्टर a और b से फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इक्वेशन यूज कर रहे हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर is equal to a b cos theta होता है. तो we can write this a cos theta will be equal to nothing but a vector dot b vector divided by b लिख सकता है. So we can write instead of this a cos theta, हम लोग इसको लिख रहा है a vector dot b vector divided by b. B. तो क्या हो गया, a b cos theta by b, तो a cos theta मिलेगा A cos theta. into b cap. Now we know that what is b cap. What is a unit vector? A unit vector is a vector Vector of magnitude 1. divided by its magnitude. Okay, so we can write it as a vector dot b vector divided by b into b cap. B cap is b vector divided by its magnitude. So we can write a vector dot b vector divided by a b into b. ये क्या हो गया, b square हो B गया square. into b vector. So this will give the component of a vector along the direction of b vector. Sir हम समझा? B common नहीं ले सकते. And एक b ये इधर डॉट प्रोडक्ट है, तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर करना है इनटू b वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है. वो b को कॉमन नहीं ले सकता है, एक डॉट प्रोडक्ट के अंदर है. ठीक है सर. ओके, so down this one. तो ये हो गया projection of a along the direction of b. So this is known as nothing but projection of a vector along b vector. Yes, sir. Done. Done, sir. Yeah. Wait sir. सर बोलो बेटा. सर ऊपर वाला दिखाओ ना. सेम ही लिखा है. Excuse me sir. बोलो बेटा. सर आपका जो सेकेंड लास्ट और लास्ट स्टेप है सर उसमें डिफरेंस क्या है, लाइक आई कुडंट गेट इट. ये दोनों को मल्टीप्लाई किया बस, ये b और b, अच्छा. तो b स्क्वायर हो गया. पर सर आपने तो बोला था वो डॉट प्रोडक्ट के अंदर है तो कुछ नहीं कर सकते. ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर है, ये b. अच्छा ओके.
Done, sir. Yeah. Now discuss about the next part of it, which is something but projection of a vector perpendicular to another vector. Projection of a vector perpendicular to another vector. Perpendicular to another vector. So over here, like suppose if we are considering, we are having a vector, let's say this is, take it as B vector, and another vector, take it as A vector. Same as like in the previous case. And the angle between this A vector and B vector is equal to, take it as theta. So in the previous part, we discussed how to find out the component of this A vector along the direction of B vector. So B vector का direction में A का component था, which is nothing but A cos theta. Same as like that, we can find out what is the component of A vector which is perpendicular to B vector. तो B vector का perpendicular direction, मतलब we are talking about this component. तो ये component क्या रहेगा? A sin theta. A sin theta. A sin theta. तभी find out करना है A sin theta vector क्या है, ठीक है? उसका magnitude नहीं है, पूरा vector चाहिए. So we can write it like this. A cos theta vector और A sin theta vector add करें तो हमको A vector मिलेगा. Correct. So we can write it like this कि A cos theta vector Plus A plus sin theta A sin theta vector is equal to is A vector. equal to nothing but A vector. अभी हमको क्या चाहिए? A sin theta vector चाहिए. So we can write it like this. A sin theta vector is equal to nothing but A vector minus A cos theta vector. Correct. Alright. अभी already इसे टर्म हमने इसलिए लिखा है because already हमने find out किया था A cos theta vector. A cos theta vector क्या है? Component of A vector along the direction of B vector. वो तो हमने already लिख दिया इधर, है ना? So we can write A cos theta vector is nothing but A vector. So we can write this is A vector minus A cos theta vector. A cos theta vector is nothing but A vector dot B vector into B vector divided by B square. So this will give the value of A sin theta vector, which is component Sir, of A vector सर अगर वो B perpendicular स्क्वायर की to. जगह A स्क्वायर लिखेंगे तो चलेगा क्या? मतलब A स्क्वायर उधर और ऊपर में भी A. क्या बोला? B स्क्वायर लिखा है ना आपको, B स्क्वायर के जगह पे A और वो B वेक्टर के जगह पे A वेक्टर, तो सेम रहेगा ना? क्योंकि जो इसके पहले आपने लिखा था ना उसमें आपने वैसे ही लिखा था, A स्क्वायर लिखा था और ऊपर में A वेक्टर था. समझा नहीं क्या बोल रहा है? A B स्क्वायर को क्या करना है? अरे B स्क्वायर का जगह अगर हम लोग A स्क्वायर लिखेंगे और वो जो ऊपर में लिखा ना B वेक्टर ब्रैकेट के बाहर, उसमें उसके जगह लिखेंगे A वेक्टर, तो सेम रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं, सेम कैसे होगा? ओके सर. A cos theta vector is A vector dot B vector divided by B square into B vector. तो ये फॉर्मेट में इसको लिखना है. अगर आप A dot B divided by A square into A vector लिखेगा, that is component of B along the direction of A. Okay. ओके. So इधर हमको ऑलरेडी A cos theta vector का वैल्यू पता है, वो वैल्यू इधर पुट किया है, ठीक है? ओके. नहीं क्योंकि सर आपने जो पहले बार सॉल्व किया था ना उसमें आपने वही लिखा था, उसमें आपने वो लिया था ना, मतलब B cos theta वेक्टर. हम लोग क्या कर रहा है? कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर फाइंड आउट कर रहा है. ओके. तो A का कंपोनेंट B में फाइंड आउट कर सकता है, B का कंपोनेंट A में फाइंड आउट कर सकता है. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके. मतलब अब A और B आर जस्ट
ऐसा सिंपल है. ओके, तो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है. ओके, तो इसके बीच में एंगल थीटा है. तो इफ यू आर फाइंडिंग आउट द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, आपको उसका आंसर ए cos थीटा मिल जाएगा. समझा? यस सेम एज लाइक दैट, अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और इसके बीच में एंगल थीटा है, सो बी का कंपोनेंट ए का डायरेक्शन में मिलेगा बी cos थीटा वेक्टर. ओके, जस्ट डिपेंड्स Okay, अपॉन आप किसको ए ले रहे हैं, किसको बी ले रहे हैं. ठीक है? Yes, ओके, sir. जस्ट सिंपल से इसका नाम चेंज हो गया और कुछ हुआ नहीं है. तो इसको हम लोग लिखेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, और इसको लिखेगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस ए वेक्टर का स्क्वायर. ओके, सिर्फ नाम चेंज किया है, सब चीज सेम है. समझ में आया बात? Okay, sir. हाँ. तो हम लोग अभी ये डायग्राम के हिसाब से क्या है वो लिख रहे हैं. ए का ए वाला Okay. कंपोनेंट है ए cos थीटा, ए वाला कंपोनेंट है ए sin थीटा. ओके, Yes, cut out sir. this one. Done, sir. Yeah. सर सर Yeah. सर आज आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? मैं थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ. मैं भी थोड़ा लेट कनेक्ट आया. सर स्टार्ट कहाँ से हुआ तो था? हम लोग ने स्टार्ट किया था ये इधर, ये वेक्टर से ही किया है, मतलब कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर से किया. ओके सर. एक्सक्यूज मी सर, कौन सा मूवी देख रहा है? एक्सक्यूज मी सर. बोलो बोलो. सर ये जो आज का लेक्चर है सर, इसका वीडियो अपलोड होगा क्या आज? पता नहीं क्या हुआ. हेलो. यस सर. उसका वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स मिलता है नहीं मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो कुछ दिन में सेम डे में मिलता है, कुछ दिन में 24 आवर्स के बाद मिलता है. अच्छा, तो क्योंकि ऐसे सर मिलेगा मेरे तो इधर अपलोड कर. कनेक्शन इशू हो रहा था इसलिए लॉग इन लॉग आउट हो रहा है. ओके ओके, मैं देखता हूँ अगर इसका क्या बोलते हैं, मिलेगा तो मैं भेजता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ उसको. ओके सर, थैंक यू. मैंने स्टार्ट किया था प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर से स्टार्ट किया. तो इसका सेकंड पार्ट है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर. सर आप बाद में खुद लेक्चर टीच करते करते रिकॉर्ड करके अपलोड करते हो? Take we'll discuss about next part. So this is about that vector dot product of two vectors. अभी ऐसा दूसरा भी है which is known as nothing but a vector product, or it is also known as nothing but a आपको अगर resultant है वो एक vector मिल रहा है, so that is known as nothing but a vector product, or it is known as nothing but a cross product. So we'll discuss about the next part around the heading vector
प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, उसका जो रिजल्टेंट है दैट वी आर गोइंग टू गेट अ स्केलर वैल्यू, बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट द रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी. So assume that if you are having a vector, let's say a vector and cross b vector, so इसका जो magnitude है a cross b का जो magnitude है that will be equal to a b sin theta, a into b into sin theta. Dot product में क्या था, a into b into cos theta मिल रहा था, cross product में a b sin theta मिलेगा. And ये जो resultant है वो एक vector quantity है, उसका magnitude भी रहता है, direction भी रहता है, and that direction is represented by n cap. So I'll discuss how to find out the value of direction of this n cap. Okay, but उसका जो magnitude है that will be equal to ab sin theta. Got it? Now I'll discuss why we are going for ab sin theta. ab sin theta क्यों करते हैं? What is the meaning of this ab sin theta? Suppose if you are having a vector, let's say a vector, and another vector, take it as b vector, and angle between a vector and b vector is nothing but theta. So we can find out what is the component of b vector which is perpendicular to the direction of a vector. So b का component a का perpendicular direction में, a क्या मिलेगा, b sin theta मिलेगा. So if you are multiplying a vector and हमको ये भी पता है कि component of b vector along the direction of a vector which is nothing but b cos theta. So one vector into component of another vector along the direction of a vector, उसको बोलते हैं कि b cos theta vector. ठीक है, अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट. नाउ वन वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर करेगा, that will give the value of their magnitude of cross product, okay, or vector product. That's why we are taking this is a into b sin theta. दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू a वेक्टर उससे मल्टीप्लाई करेगा, that will give the value of this ab sin theta. अभी हम देखते हैं इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है. तो मैग्नीट्यूड तो ab sin theta होगा, अभी इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना. तो आप लोग ने ऐसा कुछ सुना होगा, राइट हैंड थंब रूल सुना है? राइट हैंड थंब रूल. यस सर, वो मैग्नेटिज्म क्या मैग्नेटिज्म में हम लोग यूज कर. तो मैग्नेटिज्म में राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम लोग उसका करंट का डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता है. ऐसा same as like that over here we'll find out the direction of a cross b by using right hand thumb rule. तो उसमें लिए कैसे करना है, suppose if you are having a vector a vector along this direction and b vector along this direction, so we can observe the direction of a cross b. a cross b का direction अगर find out करना है तो हमारा जो कर्ली फिंगर है, तो हम लोग इधर राइट हैंड थंब रूल में कैसे करेगा कि अगर करंट का डायरेक्शन में थंब पकड़ना था तो दैट कर्ली फिंगर इज गोइंग टू गिव द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओवर हियर क्या करेगा कि जो कर्ली फिंगर है उसका डायरेक्शन b टू a होना चाहिए. समझा? यस सर. तो आप आपका राइट हैंड है, राइट हैंड को वो थंब रूल के हिसाब से अपने उसको या ऐसे, तो राइट हैंड को आप ऐसा आपका जो मतलब थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में पकड़ना है, तो आप आपका कर्ली फिंगर देखो उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, a टू b रहेगा, मतलब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा. यस सर. गॉट इट? तो a टू b अगर कर्ली फिंगर का डायरेक्शन है तो मान लो अगर अपने पेपर में, कौन सा पेपर में आपने ड्रॉ किया है, तो जो थंब का डायरेक्शन देखो परपेंडिकुलर टू द पेपर रहेगा और आउटवर्ड रहेगा. गॉट इट? सो वी कैन राइट द डायरेक्शन ऑफ दिस a क्रॉस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड आउटवर्ड. तो राइट हैंड थंब रूल नो लेफ्ट हैंड थंब यूज नहीं करना है, राइट हैंड थंब रूल. लेफ्ट हैंड यूज कर तो क्या है कि वो उल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो आपको मोर क्लैरिटी मिलने के लिए क्या करना है, अभी ये जो वेक्टर है a वेक्टर और b वेक्टर है, आप ऐसा एक आपका जो बुक में ऐसा ड्रॉ कर दो इसको, a वेक्टर और b वेक्टर को. ठीक है, फिर जो कर्ली फिंगर है उसका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, a टू b डायरेक्शन होना चाहिए. तो आप देख सकते हैं जो थंब का डायरेक्शन है वो किधर रहेगा, आपका जो पेपर का परपेंडिकुलर रहेगा और आउटवर्ड रहेगा. समझ में आया? हाँ सर. सेम एज लाइक दैट, सपोज a हो गया a क्रॉस b का डायरेक्शन,
अभी देखते हैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम रहता है कि नहीं रहता है। अभी मान लो हम लोग बी क्रॉस ए कर रहे हैं, ये हो गया हमारा बी वेक्टर एंड दिस इज आर ए वेक्टर एंड वी आर गोइंग फॉर ए क्रॉस बी। तो जो कर्ली फिंगर है उसका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? क्लॉकवाइज में होना चाहिए। तो आपका जो थंब है उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा? B2A रहेगा तो ना? इनसाइड हाँ, हम का सर अंदर की इनसाइड तरफ, द अंदर, पेपर। हाँ अंदर की Downwards. तरफ हाँ। रहेगा। So we can say that the direction of that vectors will be in inward direction. समझ में आया? Yes. In तो the A first cross B case का it's direction, outward. yeah, in the first word it is out, first case it is outward, perpendicular and outward. Second case perpendicular and inward. Inward. Okay sir. तो B cross A का डायरेक्शन और A cross B का डायरेक्शन ऑपोजिट है। Yes. Correct? sir. Correct. So we can say that A cross B is not equal to B cross A because दोनों का डायरेक्शन अलग है। अलग है। बट मैग्नीट्यूड वाइज देखेगा तो दोनों सेम ही है, Same मतलब रहेंगे। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो जस्ट रिमेंबर दैट A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A, बट स्केलर में क्या था? A डॉट B is equal to B डॉट A था। और यू कैन राइट A क्रॉस B का डायरेक्शन और B क्रॉस A का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। सो A क्रॉस B कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ B क्रॉस A। ये समझ में आया? Any doubt on this direction? No sir. सर ये बोलो बेटा। वाला नहीं समझ में आया। तो वाला कैसे आपका करना? या तो आपका जो पेपर है उसमें एक ए वेक्टर ड्रॉ कर दो ऐसा और एक बी वेक्टर ड्रॉ कर दो ऐसा। ड्रॉ कर दिया? यस सर। अभी आपको थंब को, मतलब राइट हैंड है उसको पेन के साथ ऐसा होल्ड कर दो, ठीक है? इन सच ए वे दैट जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है? आपका जो थंब है अपवर्ड डायरेक्शन में होल्ड किया। यस सर। तो आप देखो आपका जो कर्ली फिंगर है तो वो कैसे जा रहा है? ए टू बी जा रहा है। यस। समझ रहे हैं ना बात? तो थंब का डायरेक्शन किधर है? दैट इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो कर्ली फिंगर ए टू बी है, मतलब आपका फिंगर्स ऐसा जा रहा है, राइट? आपका फिंगर्स ऐसा है। तो थंब का डायरेक्शन किधर है? थंब का डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड सर। आउटवर्ड है। हाँ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझा? ओके सर, समझा। अभी हमने उसको थंब को उल्टा पकड़ो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दो, तो आपका जो ये जो फिंगर्स है उसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, है ना? अभी थंब को आप उल्टा कर दो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब है, तो आपका कर्ली फिंगर का डायरेक्शन देखो किधर है? क्लॉकवाइज जैसा है, मतलब बी टू ए जा रहा है। समझा? यस सर। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर रहेगा? डाउनवर्ड रहेगा। समझ में आया बात? यस सर, समझ गया। So we can say that A cross B और B cross A का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग A cross B is minus of B cross A। ठीक है? So just write down this part. I'm writing vector product or cross product. Vector product or cross product. Then you can write A vector cross B vector is equal to A into B into sin theta into n cap. So this AB sin theta represents the magnitude of A cross B, and n cap represents direction, and n cap represents direction, and n cap represents direction. And you can write
the direction of A cross B, the direction of A cross B can be calculated by using right hand thumb rule. By using right hand thumb rule. Along with that, you can write A cross B is not equal to B cross A, because दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. और you can write A cross B is equal to minus of B cross, same magnitude but opposite direction. हो गया? लिख दिया? Yes, sir. Yeah. Now we can observe what about the magnitude of this A cross B. So A vector cross B vector था, उसका जो magnitude है that is equal to nothing but AB sin theta. So we can try different cases over here. If theta is equal to 0, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो A cross B का magnitude क्या आएगा? So 0 आएगा. 0 आएगा, because sin 0 is equal to 0. So we can say that when two vectors are parallel, then their cross product is equal to 0. And पहले हमने डिस्कस किया था, when two vectors are perpendicular, then their dot product is equal to 0. 0. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिया है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. अगर दो वेक्टर पैरेलल है, so then their cross product is equal to 0. So if theta is equal to 0, A cross B is equal to 0. The next condition देखते हैं, if theta is equal to nothing but 90 degree, तो what about the magnitude of A cross B? A into B होगा. A into B होगा, so this will be equal to AB because sin 90 is equal to 1. अभी हम देखते हैं, if the value of this theta is equal to 180 degree, then what about the value of A cross B? सर फिर भी 0 का, क्योंकि पैरेलल रहेगा ना. Yeah, तो भी sin 180 क्या रहता है? 0 रहता है. तो when two vectors are parallel और anti parallel, same direction में या opposite direction में है, तो A cross B का value क्या रहेगा? 0 रहेगा. Okay, and if it is 90 degree, then सबसे maximum value रहेगा A into B रहेगा. Magnitude will have a maximum value, that is A into B. So write down this one. So done. Yeah. Now on the next part, suppose if you are having a parallelogram, उसका एक side A vector है और दूसरा side B vector है. So if you are constructing a parallelogram while taking A vector and B vector are there at its sides, then if you are finding out the area of this parallelogram, so what is the equation for area of parallelogram? Sir, it is length into height. Base into height. मतलब base into ठीक height. है. So area of parallelogram होता है base into height. तो over here इसका जो base का जो length है उसको हम लोग A ले सकता है. ठीक है. अभी देखते हैं इसका height का value क्या है.
तो मान लो over here height of this parallelogram is taken as nothing but h. तो we can write अगर a vector और b vector के बीच में angle है, let's say angle between a vector and b vector is equal to theta. So what is component of b vector along this direction? b sin theta. b sin theta रहेगा. हाँ सर. तो आप h को लिख सकता है, h can be written as nothing but b sin theta. Got it? So अभी Yes, देखो, sir. if we are finding out what about the value of this area of parallelogram? Therefore, a b sin theta. Yeah, so we can write this area of parallelogram is equal to base हो गया a and height हो गया b sin theta. Now we can observe that this ab sin theta is nothing but magnitude of a cross b है ना? A into b sin theta is nothing but magnitude of a cross b है. So we can write if a and b are the two sides of a parallelogram, then area of parallelogram will be equal to the magnitude of a cross b. A will go down. If a and b are the two sides of a parallelogram, then area of parallelogram is equal to magnitude of a vector cross b vector. So some questions they will give the two sides and they'll ask two vectors and they'll say that okay, these are the two sides of a parallelogram. Then find out the area. So you should go for magnitude of this a vector cross b vector. Yes sir, done. Yeah. Now we'll go for the next part. अगर मान लो हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है, सो मान लो एक ट्रायंगल का एक साइड ए है और दूसरा साइड बी है, ओके? तो ऐसा हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है. तो एक साइड हो गया ए और दूसरा साइड हो गया बी. सो वी कैन राइट दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. तो आप इधर देखो, इसमें जो हाइट है ये होगा हाइट h. तो अगर a और b के बीच में एंगल थीटा है तो ये हाइट का वैल्यू क्या रहेगा? सर b sin theta. b sin theta रहेगा. सो आप देख सकता है if I am finding out what about the value of area of triangle. अगर मैंने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहा, area of triangle, so you can observe that area of this triangle is equal to half into base is a into height we can take it as b sin theta. अभी देखो a b sin theta क्या है? magnitude of a cross b है. So we can write area of triangle is nothing but the half of magnitude of a cross b. a cross b का आधा रहेगा. तो दोनों चीज याद रखना है. अगर a and b are two sides of a parallelogram तो उसका एरिया क्या रहेगा? a cross b रहेगा. a cross b का मैग्नीट्यूड रहेगा. अगर ट्रायंगल देखेगा तो पैरेललोग्राम का आधा ही एरिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. ए भी लिखो, if a and b are two sides of a triangle then area of triangle is equal to half of a cross b, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का आधा. सर ए क्रॉस बी में मॉड आएगा क्या? ए क्रॉस बी में सर ने आपने मॉड डाला है. हाँ, मॉड आएगा. मैग्नीट्यूड है ना, एरिया फाइंड आउट करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का आधा. डायरेक्शन से कुछ मतलब नहीं है. ओके सर. Okay? Yes sir. Yes sir, done.
नाउ सेम एज लाइक हमने डॉट प्रोडक्ट में जो यूनिट वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट लिखा था, ऐसा यूनिट वेक्टर का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। सो बोलो इफ इट इज आई वेक्टर मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप है तो आंसर क्या मिलेगा? 0 होगा सर, पैरेलल रहेंगे ना। तो 1 इंटू आई कैप, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या है? ए बी साइन थीटा था, तो 1 इंटू साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 है ना, यस सर, समझा? 0 होगा। तो वी कैन राइट आई क्रॉस आई इज इक्वल टू नथिंग बट अ 0 एंड हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है तो रिजल्ट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्ट वेक्टर होना चाहिए, तो वी शुड नॉट राइट 0, विल राइट 0 वेक्टर। समझ में बात? So I cross I is equal to a 0 vector. Same as like that. Suppose if you are going for J vector cross J vector, क्या मिलेगा आंसर? 0. 0. Should not write 0, 0 vector. Got it? Yes, sorry sir. Next one you can write this K cross K. क्या मिलेगा आंसर? 0. 0 vector. 0 vector. Okay. So write down this one. You can write it like this. Yes sir, done. Yeah. I cross I is equal to J cross J is equal to K cross K is equal to 0. समझ में बात? Yes sir. अभी हम देखते हैं I क्रॉस J करेगा तो क्या मिलेगा। सोच के आंसर बोलना है। I वेक्टर क्रॉस J वेक्टर, बोलो क्या मिलेगा आंसर? सर ये तो 90 डिग्री रहेगा, फिर सर 1 रहेगा। 1 क्या इसका मैग्नीट्यूड One. रहेगा 1 इंटू साइन 90, साइन 90 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 रहेगा। अभी इसका डायरेक्शन देखो, I क्रॉस J का डायरेक्शन किधर रहेगा? राइट हैंड थंब रूल यूज करके बोलो। सर अंदर में रहेगा। Z axis. क्या Z एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। Sir, मान K लो cap. ये K कैप, तो ये देखो X एक्सिस है, ये आपका Y एक्सिस है एंड ये Z एक्सिस है, ठीक है। आप X Y Z एक्सिस को कंसीडर करो। नाउ राइट हैंड थंब रूल यूज करके इफ यू आर गोइंग फ्रॉम X टू Y, तो किधर रहेगा डायरेक्शन? Z एक्सिस में रहेगा डायरेक्शन। पेजेस, हाँ या परपेंडिकुलर टू द पेज एंड आउटवर्ड, उसको Z एक्सिस बोलता है। यस सर। तो अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 अलोंग Z एक्सिस, उसको हम लोग क्या लिख सकता है? K कैप लिख सकता है। यस सर। समझ में बात? सो वी कैन राइट I into J is equal to K. क्या I क्रॉस J is equal to K। अभी ऐसा बोलो, सो वी कैन राइट दिस I क्रॉस J is equal to nothing but K कैप। अभी बोलो J क्रॉस K करेगा तो क्या मिलेगा? I cap. J cross K, I cap। I कैप मिलेगा। तो अब देखो Y क्रॉस Z कर दो तो आपको X का डायरेक्शन में मिलेगा तब, तो वी कैन राइट ये हो गया I कैप। सेम एज लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर K क्रॉस I तो क्या J मिलेगा? J cap। J कैप मिलेगा। तब इसको याद रखना है, एक ऑर्डर पे अगर लेगा दैट मीन्स I J K ऐसा लिख दो। इफ यू आर गोइंग फॉर I क्रॉस J तो क्या मिलेगा? K कैप मिलेगा। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर J क्रॉस K क्या मिलेगा? I कैप मिलेगा। इफ यू आर गोइंग फॉर K क्रॉस I तो क्या मिलेगा? J कैप मिलेगा। अभी हम लोग इसका ऑपोजिट लिख रहा है, दैट मीन्स इफ आई एम गोइंग फॉर J कैप क्रॉस I कैप, बोलो क्या मिलेगा? K cap. J क्रॉस I माइनस K cap। माइनस K कैप, बिकॉज क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, नेगेटिव Z एक्सिस में हो जाएगा, तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू माइनस K कैप। ये समझ में आया? यस सर। Yes sir. लाइक दैट इफ यू आर गोइंग फॉर K कैप क्रॉस J कैप तो क्या मिलेगा? माइनस I Minus cap। I cap. माइनस I कैप। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर I कैप क्रॉस K कैप तो क्या मिलेगा? Minus J cap. माइनस J कैप, ठीक है। तो आप हमेशा ये इसको याद रखो, अगर आप सेम ऑर्डर पे जाएगा I to J जाएगा तो प्लस मिलेगा, J to I जाएगा मतलब उल्टा जाएगा J to I तो क्या आ जाएगा? माइनस K मिलेगा, ठीक है। सो राइट डाउन दिस वन।
Yes sir, done. Yeah. Now on the next class we'll discuss how to solve questions related to this cross product. Okay. Thank you. Okay sir. सर इसमें कुछ homework? क्या है डॉट प्रोडक्ट का होमवर्क मैं भेजता हूँ. ओके सर. सर वो क्वेश्चन नंबर भेज दीजिएगा. बोलो. हाँ कि मतलब कब कहाँ से कहाँ तक करने का. हाँ मैं भेजता हूँ.